A very happy Republic Day. तीन रंग का त्योहार जिस देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ अपना हिंदुस्तान है। A very warm welcome to respected teachers and my dear friends. Greetings to all of you on this 72nd Republic Day of the world's largest and the most vibrant democracy. In this land of ours, enriched by diversity with many festivals, our national festivals are celebrated by everyone with great patriotic fervor. We celebrate the national festival of the Republic Day with enthusiasm and express our respect for the national flag and our faith in the Constitution. This day has come. This day has come to mean a lot to all Indians living within the country and abroad. 71 years ago, on this very day, we, the people of India, adopted, enacted, and gave ourselves a unique constitution. For all of us, then, this is the day to also pause and ponder over the core values that the Constitution propounds. These values, justice, liberty, equality, fraternity, outlined in the preamble of our Constitution, are sacred to all of us. Its abiding adherence is meant not only for those who are mandated to govern, but for the people at large. It is not without reason that the wise man and women who framed the Constitution chose to place these four terms at the very beginning of the Constitution to build the foundation on which the edicts of our democracy rest. In fact, these were the values that guided our freedom struggle. Because it's your great leaders and thinkers like Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Mahatma Gandhi, and Subhash Chandra Bose inspired our freedom struggle. They had diverse dreams of magnificent future of our motherland India. But common to their aspirations were these values: justice, liberty, equality, and fraternity. I would like that we must go further back into the history and inquire what precisely these values guided our national leaders. And the answer is obvious. This land and its inhabitants have cherished these ideals from the time immemorial. Justice, liberty, equality, and fraternity are perennial principles of our philosophy of life. They come to us from the dawn of civilization through an unbreakable chain. And it is, of course, the task of every generation to seek out the meaning of these values for its time. As the freedom fighters led in their day, so should we in our time. These three principles should light our path to development. तो दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी पहले सत्र से लक्ष्मी को उनके विचार प्रस्तुत करने के लिए। लक्ष्मी फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर। आप लोग यहाँ पे आओ ना, अब एक्सेप्शनल हो। या तो रजत को दे दे या प्रांजल को दे दे। प्रांजल मना करती है। भाई वापस रिफंड आ जाए आपका भैया। अरे 2 मिनट कॉल चला लो, सर ने बोल रहा है भेज रहा है परफॉर्मेंस चलाएंगे। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। यह दिवस हर भारतीय का सम्मान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानियों के बाद भारत का 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ। गणतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए शासन। भारत एक गणतंत्र देश है जहाँ आम इंसान अपना नेता खुद चुनता है। भारत में पूर्ण स्वराज करके हमने हमारी महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। भारत को आजाद कराने के लिए इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार अपने देश के लिए हम इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकते। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर भव्य स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया था। इस दिन राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं।
राष्ट्रध्वज और ध्वजारोहण के साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान की आशीष दी जाती। साथ ही सेना की तीनों टुकड़ियां परेड में शामिल होती है और अपनी सैन्य ताकत दिखाती है। इसके बाद आधिकारिक तौर पर 29 को मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस का समापन होता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, ना रोग मेरा है ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो बस एक छोटी सी बात का गर्व है। मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। Moving on to the next program, I would like to call Praveen for song. Respected teachers and my dear friends, Happy Republic Day to everyone. I'm Kathy, going to present a song. Hey, मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के फिर ना आए, जो लौट के फिर ना आए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस में वो, जब तक थी सांस में वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, जमीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा परबत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी
अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। थैंक यू। Thank you, Prati, for this melodious song. Now I would like to request Christian group on the stage to present their program. Christian group, please. खाना ऑनलाइन पहले एक बार ना हल्का सा दबा दी, फिर जोर से दबा दी। ऐसे हल्का था, फिर जो पहले हल्का, फिर फिर क्या होगा? अरे फिर फोकस हो जाएगा। लाइव तो हम चला देंगे। अंतिम लाइट ऑन कर दो। इस पे टेबल रखा है।
We are all Indians, firstly and lastly. Quoting Dr. B.R. Ambedkar, I'd like to wish Happy Republic Day to everyone present. Today, India is celebrating its 72nd Republic Day to mark the first revolution against the British regime. On this date, Indian Constitution was adopted in 1950 after attaining the independence on 15th August 1947. In India, Republic Day is not less than a festival. The whole country, regardless of caste, creed, religion, beams with joy. On this day, the entire country is laced in tricolors to convey that India is a nation where unity and diversity is celebrated. Republic Day reminds us of our struggle, how the Indian National Congress, with the help of youth, achieved its demand of Purna Swaraj. The struggle for freedom was based on some high principles and ideas, such as non-violence, cooperation by all the Indians, with great zeal and grandeur. It also reminds us of the sacred values enshrined in the Constitution of India. It is a day of national pride. Display of grand military on the Republic Day parade reminds us of the security of our territorial sovereignty is the outcome of many sacrifices. The Indian Constitution till date is the longest among all constitutions that exist. When it was created, it had 395 articles and 8 schedules in 22 parts. Today, it has 448 articles, 12 schedules in 25 parts. A team led by Dr. B.R. Ambedkar took nearly 35 months to draft the entire Constitution. The Constitution was handwritten in Hindi and English and was signed by 308 Parliament members on January 24, 1950, 2 days before it became effective. Republic signifies the power of the Supreme. A resident living in the Republic country appreciates the right to choose their delegates, political pioneer to lead the nation. In this way, in the Republic of India, each resident appreciates equivalent rights independent of the state they belong to. Republic Day main celebration is held at Rajpath in the national capital, New Delhi, before the President of India. Ceremonious parades take place, which are performed as a tribute to India, its university in diversity and rich cultural heritage. On this day, let's promise our motherland that we'll do everything to enrich and preserve our heritage and our ethos. Freedom in the mind, strength in the words, pureness in our blood, pride in our souls, zeal in our hearts. Let's salute our India on this Republic Day. Thank you and Happy Republic Day once again. Thank you, Gatra. You presented very well. Never let us forget, never let us be shy. Let's make the flag of the nation fly very high. Last year, as humanity almost came to a halt in the face of a calamity of gigantic proportions, I often found myself reflecting on the central message of the Constitution. Our effective response to the pandemic would not have been responsible without our constitutional value of fidelity. Indians have been like a close-knit family, making exemplary sacrifices to protect each other in the face of common enemies of coronavirus. I am thinking here of doctors, nurses, paramedics, healthcare administrators, sanitation workers who put their own lives to risk to care for COVID-19 patients. Some of them even lost their lives. Along with them, about 1.5 lakh people became victims of this pandemic. I convey my condolences to their previous families. Our frontline corona warriors were ordinary citizens who turned out to be extraordinary. When the history of this tragic chapter, which the future generations will behold, all for the heroic responses to the crisis for which no one would have been truly prepared. The adversities of the previous year have only reminded us of what we have always known deep in our hearts, that care and concern for humanity, the feeling of fraternity is what kept us together for millennia. In every sphere, Indians rose the occasion and put others before themselves. We Indians live and die for humanity. The Indian ideal has been expressed by the great poet Maithili Sharan Gupta in these lines. उसी उद्धार की सदा सजीव कीर्ति पुष्टि तथा उसी उद्धार को समस्त सृष्टि पुष्टि अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने।
look at 2020 as the year of learning. There were miracles of the revolutionizing Mother Nature, which taught humanity a hard lesson that the small is not exterior but complementary to it. I am sure that the view to reducing the risk of pandemics, the issue of climate change will be accorded top priority at the global level. And obviously our constitution it's a very long and the running part to frame its new rules and regulations. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में शिक्षा का महत्व क्या है, ये समझाने हमें आ रही है बबीता और उनका ग्रुप एक स्किट के माध्यम से। बबीता की ओर से। बारह 2000 कर दिए इधर चल आदरणीय निदेशक महोदय, अध्यापकगण व मेरे प्यारे सहपाठियों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी आपके समक्ष एक हरियाणवी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं जिसके पात्र हैं मिहिर सिंह फौजी, उनकी मां संतोष, उनकी पत्नी सुनीता, एक अध्यापिका और एक डॉक्टर। मिहिर सिंह फौजी और सुनीता शादी कर घर आते हैं और मां से आशीर्वाद लेते हैं। सदा सुहागन रहे, भाई भतीजे बने रहे। दिखा रहे बेटा, दिखा रहे। 2 महीने बाद माँ मेरी छुट्टी के दिन पूरे हो गए। अरे मैं जाना पड़ेगा। अच्छा रे, देख तो तेरा मुंह मीठा कर मांगी। बावड़ी जी तो मेरा भी ना लाग है, हर फर्ज है निभाना तो पड़ेगा। एक ही ऊपर से या मेरी माँ भी तो शेयर है। ये बेटा ध्यान से जाइए, ठीक समा जाऊँ। चिट्ठी ले लो, चिट्ठी ले लो, चिट्ठी मेरे सिंह का नाम है, चिट्ठी आई है। यारे डाकिया, कबीर सिंह के नाम वाली चिट्ठी बना दे। आप कौन? मैं उसकी मां हूँ, चिट्ठी दे दे दावड़ा। सुनीता, सुनीता है, हमें सुनीता देखे है, ये चिट्ठी पार्टी है, ये देखा किसी ने? ये वाली देखा है, तो मस्ती से बुलाना। पूजा है, पूजा, एक बार चिट्ठी पढ़ी है। ये मास्टर ने ये देखी एक बार। क्या हो गया था? इधर क्यों घबरा गई? मेरी पढ़ी है चिट्ठी। मेरे सिंह की चिट्ठी है, याद है? उन्होंने लिख रखा है, माने राम राम और सुनीता ने ढेर सारा प्यार है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, मैं जड़े पति ठीक हूँ।
कुछ दिन में बदली होंगे, मैं भी एक धरना आऊंगा। अपना ध्यान रखियो, चिंता की कोई बात नहीं है। इतनी क्यों घबरा रही हो? ठीक से मेरे मन में शांति मिलेगी। हाँ। 2 महीने बाद सुनीता सुनीता, चल डॉक्टर ने फिर दिखाया वहां चल तो डॉक्टर ने। हाँ ताई, राम राम, की हो गया? राम राम, तू मने न्यू बता दे। हाँ बोलो ताई। मने न्यू जानना है, अब हमारी बहू के पेट में छोरा से अब छोरी से। ए ताई, कैसी बात कर रहे हैं? मैं कैसे बता सकूं? कानून के खिलाफ है। आपने भी सजा हो जाएगी, मैंने भी सजा हो जाएगी, सजा देता है। मन्ने नहीं दे रहा है, डॉक्टर का फर्ज हो जाता है। मरीज ने न्यू बताना, मैं न्यू जानना चाहूँ तो मेरी बहू के पेट में के बालक है। ले ताई, तू घृणा करे तो मैं बता दूंगी, पर इसी बात है कि किसी से बताइए ना। ठीक है, मैं कौन ही बताऊंगी क्या करेंगे। तेरी बहू के पेट में छोरी से लड़कियां आवेगी, लक्ष्मी तेरा घर में। हाँ ताई। ठीक है ताई, राम राम। किसी राम राम। माँ, लो पानी पी लो, क्या तुम बस हो रहे हो? मन्ने नहीं पीना लो पानी चूनी, और मैं तेने बता दूँ मन्ने नहीं जी है छोरी, मन्ने जी है पोता। अपने छोरे जीवन से नाम जब डाल खाकर फिर माँ, घर में तो लक्ष्मी अच्छी बात है। मन्ने नहीं जी लक्ष्मी, ये तेरी इस्लाम देखो। की जांच कराना कानून के विरुद्ध है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर तुम्हें ही बच्चे की जांच कराई गई, जिससे डॉक्टर और सुनीता के परिवार को सजा भी हो सकती थी। चाहे जैसे भी हो परिस्थितियाँ, हम लड़ते जाएंगे, पर कन्या भ्रूण हत्या नहीं अपनाएंगे। वो कन्या है और वो ही जन्मदाता है। तू कौन होता है जो तू उसे ही मिटाता है? और इसी बात को लेकर सुनीता और सुनीता आज की धरती गई, और दूसरी तरफ से मेहर सिंह पोती के आने का समय भी हो गया। माँ, माए, हाँ, इतने रहो सारे। ए बेटा, आ गया तू। रे पोते मार डालो ऐसे, देख मैं दूध लिया। आगे जी आप। हाँ, और ठीक ठाक सुने? बढ़िया, तू बता। आपने नई खुशखबरी सुनाई है। बोल। आपने पापा बनना रहे हो, पर के बोल। माँ ने चेकअप करवाया था और डॉक्टर ने नू कही सपने छोरी हो गई, पर माँ तो पोते की अड़लाई बैठी है। नू कहे हाय पोता, रोज घर में नुए करे से। तू चिंता ना कर, माँ ने माँ समझा दूंगा। माँ, हाँ, ठीक है यार, ठीक है सैया। माँ, इस दुनिया की समाज में सारे छोरा छोरी दोनों बराबर हो हैं। हमारी छोरी की से कम कोली और अपनों से ना फिर छोरी है बबीता, उसने देख लिया बाप से बात करने अच्छा है। हम भी अपनी छोरी ना कुछ पढ़ावांगे, लिखावांगे, कामयाब करांगे, अपना नाम रोशन करेगी। अच्छा रे मेरी आंखें पे पट्टी बन रही थी, ये पाछे में कदे छोरा छोरी न करनी। ए बेटी मने माफ कर दिए, मेरे से गलती होगी। मैं आपसे अपने एक संदेश देना चाहूँ। खिलती हुई कलियां है बेटियां, खिलती हुई कलियां है बेटियां, माँ बाप का दुख दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां,
वाला कल है बेटियां। धन्यवाद कविता जी, आपने अपनी सहजता से हमें समझाया बेटियों का महत्व। अब आ रही है पूजा सेकेंड ईयर से अभी पोएम के साथ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं झूठ में जलती रेत पे लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांसों को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औलाद क्या, जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरे दिवाले में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर तन्हाई में ईद पे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है, एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कुंवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ। मैं सैलाब में घुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। अपनों की ओर बंदूक लेके बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह हूँगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज मोहम्मद की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना बनाया है, हुआ पैदा जो इस देश में बाहर से आया है? सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है तो इसे दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ, हिंदुस्तान बतलाओ। चलो ऐसे चढ़ो उसे जिंदगी की जान कहलाओ। पहाड़ी वादियां मैदान साहिल हो या सहरा हो, पहाड़ी वादियां मैदान साहिल हो या सहरा हो। तिरंगा 3 रंगों से बने, दिखता सुनहरा हो, दिखता सुनहरा हो। युवा हर प्राण ये पढ़ ले, युवा हर प्राण ये पढ़ ले। सड़क पर खून न होगा, मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। धन्यवाद। Very beautiful poetry, Pooja. Thank you so much. And now let's welcome Ishu of 3rd year for her breathtaking poetry performance.
तुमको हम बताना चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कितना समृद्ध है, कितना शक्तिशाली और बहुरंगी संस्कृतियों वाला है और उसकी पहचान क्या है। हम तीनों डॉक्टर सुनील जोगी की एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे अच्छे हिंदुस्तान का हम सीना के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं, हाथों में गिटार हमारे कुरान उठाकर कहते हैं, जो चली हार में सदियों से लोगों अनमोल कहानी है। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। हम दाद रहती किनारे पावन गंगा किनारे कादर नवाज की चादर में अमृतसर का गुरुद्वारा। हम हिंद महासागर का जन्म की ऊंचाई है, हम हिंद जोशी का मिला की शहनाई है। हम सूर्य देव का ज्योतिकल शंकर वाला डमरू है, जिन पर गिरकर नाचना हमको भी राखे गुरु है। हमारे भट्ट की संतान है, हम सूर्य लगाने वाले हैं, हमारे में गुरु बाबा का दिखाने वाले हैं। हम वेद पुराणों के ज्ञाता, हम अक्षर के आराधक, हम महावीर के हत्यारे गौतम का दर्शन है। हम अर्जुन का कांटे को चक्र दर्शन है। हम गला बजाए सब करने बोली दिवाली, जो देवों के सर पर चढ़े हमको पूजा की थाली। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तान, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तान। हम इतिहासों के पन्ने हैं ढोल बजाने वाले, हम वेद पूजा है के जगत मनाने वाले। 1618 भाषाएं बोलियां साथ में रखते हैं, हमसे धर्मों से हिंदुओं को चोलियां साथ में रखते हैं। हिंदू घाटी वाली माटी साथ में रखते हैं, 29 राज्यों में 64 राज्य साथ में रखते हैं। हम सवाल के साथ में जनगणमन को गाते हैं, हम सबसे सच्चे हिंदुओं को कहलाते हैं। वेद मंत्र पर करते हैं दुनिया की बानी की है। इस धरती को कोई नूर सब लगे दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। और वेद घोष की वाणी है, हम तुलसी का दर्शन है, अब्दुल कलाम की दृष्टि है, और राजा का सागर दर्शन करना बने सभी लक्ष्मीबाई का स्वागत है मेरा भाई की भक्ति। हम राम से योगी है गोली जी बचाते हैं, सभी सालियां मिल जाती हैं सुंदर सुंदर छाते। में जो से आए हैं मौके जिंदन ने अमेरिका का करके बचाई। सबके घरों को छू रही हमको गाना से करती है, दुनिया को जीत रहे हैं हमको हम टाटा बिरला की पूंजी लक्ष्मी मित्तल अंबानी है। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। हम कभी कभी राखी जैसे योगी वाले हैं, हम हीरो गाने की गले रस्तान हम सोनराज को सीधी राम हम इंदर बंद गाना है। भूषण की सोनी राम राज से बच्चन के बंजारा कल में हमें को लाजम का मातम का संग्राम का नाम जब बड़ा बंद बने बैठे मेरे मगर करे हम जब भी टिकरा बने का वचन करे तो जगे बैठो एक लगा लगाता मेरे गाना इस सदियों के जीवन में साधु संतों की वाणी। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। मंदिर शिवा के वंशज हैं, राजा की छोटी छाती है, मंदिर की तलवारें हैं सबको के साथी। हम बंदा बैरागी बड़ी रानी की कथा सुनाते हैं, हम रंग बसंत की चोला शाम सवेरे गाते जाते हैं। देश नारी की खुशियों से आगे कदम बढ़ाती, लक्ष्मीबाई बच्चा लेकर अंग्रेजों से लड़ जाती। मंगल पांडे दरबार से नाके नाके शुरू कर देता है, तब से लंदन जाने उड़ाए से बचाते देता है। सावर में काले पानी पर जाते हैं, दुल्हन में डालर लोगों के आगे हम युद्ध भूमि के पूरे से कलरा से नारी है। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। हम सीना खोल के कहते हैं, आवाज लगा कर कहते हैं, आंखों में गीता हमारे कुर्बान होकर कहते हैं। तो चली आ रही सदियों से हमको अनमोल कहानी है। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है।
Hello, hello. 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 Good morning, everyone. I am Shashti from BSCPN Children's Lab to describe the rich heritage and glory of this country, our India, through a song.
ही सफर है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की किसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। आदरणीय अध्यापक गण और मेरे सहपाठियों, मैं आज प्रीति 75वें गणतंत्र के उपलक्ष्य में आपके सामने राष्ट्र निर्माण पर अपने विचार प्रकट करना चाहते हूँ। आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लो सन 1857 में ही चल चुकी थी, जो बरसात बनकर सन 1947 में हमें आजाद करा पाई। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरतियों के फेरे में फंसे हुए थे, तब रंग दे बसंती के चोले की एक आवाज से टोलों के टोले उमड़ आते थे और बंदे मातरम की एक आवाज से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का उबाल अंग्रेजी शासकों की जड़ हिला देता था। उस समय लोग अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 73 की युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाते थे, प्यार भी भरपूर गया, मांग का संदूक भी गया, नन्हे नन्हालों की लकोटियां भी चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां भी चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला कि बोटियां कहाँ चली गई, जिस्म की बोटियां कहाँ चली गई। और आपके लिए तो एक आखिरी मरा एहसास, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपनी बेटी को सरहद पर दुश्मनों की हत्या उड़ाने के लिए भेज देती है और उसे बंधन दिखाकर ये भेजा करती है, पुत्र मेरे घबरा ना जाना, इंच इंच कट जाना, ना पीछे हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित करना होता था। तब देश बलिदान मांगता था, देश लड़ जाने का कहता था, मर जाने का कहता था, फांसी चढ़ जाने का कहता था। लेकिन आज देश लड़ जाने को, मर जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और ईमानदारी से करे ना, वही सच्चा देशभक्त है। और मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी हो 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि उस फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जब ट्रैफिक की छांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। अपने परिवार, अपने समाज और देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशभक्ति के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये सोच सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान है तेरा, अगर तू दरिंदा है ये शमशान है तेरा, अगर भाईचारे से रहना है तो रह, ये जमीन भी तेरी है, ये कब्र तेरी है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ लड़कों से बात करना देख भाई है और वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड से घर में हंस सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में आज हम चौथे नंबर पर हैं। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ प्रत्येक लगते हैं 56 लोग भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं, लोग भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इतने इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए।
मरने के बाद एक अंगदान देकर मरते हुए जीवदान दीजिए। ये सबसे बड़ी सच्ची देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस मुझे इतनी सी बात का जरूर है, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे समाज में नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में है। जब हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम सिख ईसाई पैदा होते हैं, बस बदकिस्मती है हमारी कि अच्छे इंसान पैदा नहीं होते। असल मायने में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की, बल्कि एक राष्ट्र निर्माण के लिए सच्चे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, पेड़ पौधे भी अगर परेशान हो जाए, हिंदू मुस्लिम, जरा सोच के देखिए, पेड़ पौधे भी परेशान हो जाए अगर परिंदे हिंदू मुसलमान हो जाए। एक आश्चर्य की बात है, जिस देश ने दुनिया को दक्षिणा नालंदा जैसे विश्वविद्यालय देकर दुनिया तरक्की, और आज हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में भी हमारा नाम खड़ा नहीं हो पाता। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता दुनिया में शीश नवाया है, क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचार में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब समाज में महिलाओं की पूजा नहीं, इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव हो पाएगा जब हम जातिगत आरक्षण नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करें। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं, सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बढ़ाएगा। स्वच्छ भारत को हम दिल से अपनाएंगे। असल मायने में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव नहीं होगा जब एक नागरिक नैतिक चैत्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवाला, आर्थिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से करना, स्वैच्छिक मूल्य के आंकड़ों में खंड खंड रहेगा। पर हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं, पत्थर से लगती है। I being a student, being a single daughter of this motherland, be proud to be Indian. I salute करना चाहूंगी हर उस इंसान को जो सरहद से लेकर खेतों में अपना काम पूरी निष्ठा से करता है। मैं इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी एक ऐसी राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी मैं सभी मिलकर, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है हम इस देश को आगे ले जाए, इस राष्ट्र को आगे ले जाए, इस वतन को आगे ले जाए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, मेरा इंसान मान है, मान रहेगा, हौसला दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान विजय नहीं करेगा, एक दिन पाकिस्तान विजय नहीं करेगा, पाकिस्तान ही क्यों सारा जहां जय नहीं करेगा। जय भारत, जय हिंद। हमारे देश में कुछ कमियां हैं, जिसने कभी कहा कि हम सब मिलजुल उसको अपने राजनीतिक कार्य को अच्छे से करेंगे। और अब आ रही है रक्षिता, लेकिन उसमें इसमें विचार साझा करने आती है, प्लीज स्वागत करिए। सबको मेरी राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। नाराज हो गया सर, राम राम कर गया। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। तो मैं मतलब धुन सुनाऊंगी, आप लोग जज करना कि कौन तो चलो गाओ मेरे साथ। एक बार और सभी साथ में आओ बच्चों, सुने सिखाई जाती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। तो प्रारंभ में आप लोगों ने भारत की शाखा देखी होगी, देखी ना?
तो चलो एक शेर सुनाते हैं ना। बात अगर वतन की है तो यही पहचान है, बात अगर वतन की है तो यही पहचान है। लहू के एक एक कतरे में हिंदुस्तान, लहू के एक एक कतरे में हिंदुस्तान। तो मैंने अपना इंट्रो नहीं दिया तो हम दे देते हैं। माई सेल्फ रशीदा गौड़ फ्रॉम BSc B.Ed फर्स्ट ग्रुप एंड विश यू वेरी हैप्पी कंप्लीटेड कोर्स। तो आज इसी जोश के साथ अपना 72nd रिपब्लिक डे अपन फुल जोश के साथ नारे लगाते हैं। तो प्लीज एक बार मेरे साथ वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। मैं आपको भी जो बता दूं, ये ऑन द स्पॉट था। अभी रक्षिता ने मुझे बोला कि मैं कुछ बोलेगी, तो ये बिल्कुल ऑन द स्पॉट था। तो आज चलिए चलते हैं आपकी आखिरी प्रस्तुति की तरफ। ये स्पेशल वीक की थीम है बचपन को भी काम करना। अरे बैठ जाना। अपना काम अच्छे से करिएगा, क्योंकि इस सीन का मूवी का नाम बता रहा है, सीन देखते हैं। ये बताओ, ये तो तुरंत कैसा चल रहा? अच्छा है, मगर चाचा जी आपने तो कहा था कि इनकलाब हम देश वालों का है, अपना कहीं नजर ही नहीं आता। भाई तुम इंडियंस को अपनापन वही नजर आता है जहाँ मुरझाए हुए चेहरे, खाली पेट। जी 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 जी। और नहीं तो क्या, यहाँ देखो, यहाँ रात की खुशहाल नजर आता है, न रोटी फिक्र न कपड़े का गम, घूंघट का झगड़ा, और एक तरफ तुम्हारा देश। मिस्टर, 1000 रोटी में से एक रोटी कर्जे की खाता है तुम्हारा देश। वो देश आपका भी तो है। गाली मत दो। जो देश दूसरों के रहमो करम पर पल रहा हो, वो देश मेरा नहीं। मेरा तो है। होगा, तुम उसे अपना समझते हो जो मदद लेता है, लेकिन मैं उसे अपना समझता हूँ जो मदद देता हूँ। तुम लोग जमीन से पेट भर अनाज नहीं निकाल सकते और लोग चांद तक पहुंच गए। है कोई मुकाबला? जो चांद पे पहुंचे उनके सामने दुनिया में सच का है। अरे थोड़ा पीछे से खींच ले। गाने पर पकड़ करते हो। है कोई ऐसी बात तुम्हारे देश की जिस पर किसी ऊंचा कर सको? नहीं। माय डियर बॉय, हमारे देश में कुछ नहीं। India's contribution is 0, 0 and 0. दुनिया को सब दिया, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। तेराना दशमलव भारत जो क्यों जान पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सबसे जहाँ पहले आए, सबसे जहाँ पहले आए, पहले जन्मी है जहाँ पे कला अपना भारत हो भारत है। इसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले परे, बढ़ता ही रहे और फूले परे। रुक गए और सुना। जहाँ की प्रीत सदा
कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मैं मंच पर माननीय दुकेश सर को आमंत्रित करना चाहूंगी तो शब्द सुनिए। दुकेश सर। आप सभी को वाल्मीकि गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आपको सर नए स्टूडेंट्स को मुझे शायद नहीं जानते होंगे। संदीप सर सीनियर हैं, उनके रहते मुझे बहुत थैंक्स करना है। मेरे सुभान की बात सर के रहते मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं थैंक यू सर सीनियर। चलिए 5 मिनट डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है गणतंत्र का मतलब होता है गण का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल और तंत्र का मतलब होता है अरेंजमेंट, व्यवस्था। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में जब लोगों के लिए संवैधानिक व्यवस्था की जाती है उसको हम गणतंत्र कहते हैं। और ये जो गणतंत्र है आपको पता है हम सबको रेडीमेड मिले हैं, ना तो मैंने सेक्रेटरी से लिया ना आप लोगों में से किसी ने सेक्रेटरी से। तो हमें यंग जनरेशन को खास तौर से देश के लिए कुछ करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है संविधान जुलाई 1947 के अंदर संविधान सभा बनी थी जिसमें 389 सदस्य थे
और उसमें 90 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। और जब 2 महीने के बाद पार्टीशन हो गया, मुस्लिम लीग अलग चली गई पाकिस्तान का संविधान बनाने के लिए और भारतीय संविधान सभा अलग चली गई, तो 299 सदस्यों ने मिलकर के हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसकी याद में हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे का मतलब होता है जिस देश का अपना संविधान हो, जिस देश की अपनी एक राष्ट्रीय अस्मिता हो, जिस देश की अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान हो, जिसका अपना एक राष्ट्रीय ध्वज हो, राष्ट्रीय गीत हो, राष्ट्रीय गान हो, नेशनल एम्बलेम्स हो, उसको हम गणतंत्र कहते हैं। तो गणतंत्र होता है 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा प्रोविजनल चेयरपर्सन बनाया गया। वो काफी एज के थे, 80+ थे, तो उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। बहुत सारी बैठक करनी थी। उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट चेयरपर्सन बनाया गया। तो ये संविधान हमारा के साथ होता है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, लगभग 3 साल लगे थे। और इस संविधान में करीबन 114 दिन 140 डेज जो है गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई थी और 166 बैठकें ली गई। तो 166 बैठकों के बाद जो है हमारा संविधान फाइनलाइज किया गया था। और कई बार स्टूडेंट्स को शायद पता नहीं होगा कि हमने 26 जनवरी 1950 को इसमें लागू क्यों किया। संविधान तो हमारा 26 नवंबर 1949 को तैयार किया था। उसकी वजह ये थी कि 26 जनवरी 1930 से हम लगातार आजादी दिवस मनाते आ रहे थे। तो संविधान सभा की कमेटी के सामने ये प्रश्न आया कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है 26 जनवरी से, इस डेट को सेट काम करें, क्योंकि देश को आजाद हमारा 15 अगस्त को हुआ। तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि जो 26 नवंबर 1949 को संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया था, तो उसके कुछ मेन क्लॉज छोड़ करके मेन क्लॉज को उसी समय इम्प्लीमेंट कर दिए थे। बाकी सारा संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया। और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी को। 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। और तब तक हमारी सारी चीजें सेटल कर दी गई थी कि हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा होगा। आप जनगण मन गाते हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, इसमें 3 स्टैंजा है, पता होगा आपको 3 स्टैंजा है। इसमें से पहला स्टैंजा ही हमने राष्ट्रीय गान के रूप में लिया है। और ये तत्व बोधनी पत्रिका की उस समय निकलती थी 1913 में। तो 1913 में ये पत्रिका में छपा था भारत भाग्य विधाता के नाम से, जो आपका राष्ट्रीय गान है। तो इसको जो है 19 का पहला स्टैंजा लिया। ये जितनी भी सारी चीजें थी, ये सारी 24 जनवरी 1950 को हमने एक्सेप्ट कर ली थी। उसके बाद 2 दिन के बाद जब संविधान लागू हुआ, तो तब से लेकर के आज तक की चीजें चल रही है। वंदे मातरम है, वंदे मातरम आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक की आनंद, उसमें भी 3 स्टैंजा है। उसमें से पहला स्टैंजा है हमने राष्ट्रीय गीत के रूप में लिया है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमने बहुत संघर्ष से हासिल की। अभी आपका यूथ डे आएगा, तो मैं एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, उनकी मीटिंग होती है खासतौर से यूथ डे वाले दिन, तो उसमें मुझे जाने का मौका मिला। तो वहाँ एक वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारे देश का यूथ है, उस देश के यूथ को जो है चैनलाइज करने की आवश्यकता है। उसमें से केवल 5% यूथ ही ऐसा है जो अपने करियर को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, नेशन को लेकर के, डिस्कवरीज को लेकर के, साइंटिफिक डिस्कवरीज को लेकर के अटेंटिव है, एक तरह से अवेयर है। बाकी 95% यूथ को चैनलाइज नहीं किया गया। चैनलाइज है भी नहीं और हो भी नहीं रहा। केवल 5% यूथ ऐसा है जो देश में टॉप पे जाता है, आईटी प्रोफेशनल्स बनते हैं। ये सारे के सारे 5% जो है, यही लोग सिविल सर्विसेज में जाते हैं, यही लोग डिस्कवरी में जाते हैं, यही लोग नासा में जाते हैं, इसरो में जाते हैं। 95% यूथ को चैनलाइज करने की आवश्यकता है। तो उनकी पावर का, ऊर्जा का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है। तो मैं तो अक्सर जब भी मुझे मौका मिलता है कहने का, कहीं पे भी खड़ा हो गया, तो मैं अक्सर कॉन्सेंट्रेट रहता हूँ यूथ को जरूर इस चीज के लिए तैयार किया जाए। मैं ये चाहता हूँ प्रारंभ में आप जितने भी हमारे फैमिली में मेंबर्स हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स, ये उस 5% बीच में आए, 95% बीच में ना है। 5% बीच में आएगा तो देश का, समाज का, सोसाइटी का, नेशन का, इंटरनेशनली हम लोगों को फायदा है। ये जितने भी हम नेशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं, इन नेशनल फेस्टिवल्स को आप केवल एंजॉय करें, इसके पीछे जो संदेश है, जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है ये, उसको आप अच्छे तरीके से अपने जीवन में लेकर के आओ, ताकि 5% कैटेगरी में हम लोग भी आ सकें, प्रारंभ में वाले भी आ सकें, 95% कैटेगरी में ना जाए।
तो इस जब ही इस रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने का आप लोगों को मेरे ख्याल से इस दिन की सार्थकता तभी मानी जाती है। तो मैं ज्यादा लंबा न खींचता हुआ आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ। इतने शॉर्ट पीरियड में आप सब लोगों ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, इतना अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी बातें बताई, स्टाफ भी हमारा सारा कोऑपरेटिव इतने तरीके से इतनी जल्दी इस शॉर्ट नोटिस पे को किया। आप सभी के सभी लोग हार्टली थैंकफुल, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you so much, sir. जब से मैं प्रारंभ में आई हूँ, मैंने हमेशा इतने त्योहार हमने यहाँ पे साथ में मनाए हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोकेशन ने किसी त्योहार का मतलब ना समझाया हो, क्यों होता है, कैसे होता है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनसे कोई घड़ी छूट गई हो। तो सर, ये जो आपका मैसेज है कि हमें युवा को जगाना है, तो बिल्कुल हम इस चीज को याद रखेंगे और धन्यवाद सर। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सना नहीं मिलता। नोटों में भी लिपट कर सोने में से मर कर मरे कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई तोहफा नहीं मिलता। हर किसी के दिल से पैगाम निकलेगा, कोई निजाम तो कोई रहीम निकलेगा, लेकिन इनके दिलों में झांक कर देखोगे तो उसमें हमारा भारत महान हिंदुस्तान दिखेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज के लिए समाचार खत्म होते हुए कर दूंगा खत्म, कल लड्डू दिखाते हुए दिखाऊंगा।